Okay, guys, welcome back. We were discussing solutions of triangles, isn't it? और शायद से अपने 3 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, isn't it? We finished साइन रूल, isn't it? हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं साइन रूल पे, तो आज हम करेंगे कोसाइन रूल, राइट? तो कोसाइन रूल क्या होता है वो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, isn't it? हम बोर्ड्स के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? बट फिर भी लेट्स रिकॉल. सो कोसाइन रूल में ना 6 फॉर्मूले होते हैं, बस आपको उनमें से 2 याद रखना होगा. बाकी के 4 फॉर्मूले जो है वो आप इजीली you'll be able to remember the other 4 pretty easily. ठीक है, सेकेंड वन कोसाइन रूल, राइट? अच्छा, तो 6 फॉर्मूले, 3 in terms of sides and 3 in terms of angles, isn't it? In terms of sides and in terms of angles. Say if you look at the first one, जैसे कि say we want to find a square, ठीक है? Remember how do we remember cosine rule? जैसे कि यहाँ a square आया, remember वो साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है a b c, a to b, b to c, c to a, है ना? तो a square is equal to b square plus c square, है ना? b square plus c square minus 2bc, है ना? minus 2bc into cos of angle opposite to this side, तो cos a, ठीक है? सिमिलरली b square will be equal to, सिमिलरली देखो b के बाद ca, तो c square plus a square minus 2ca cos b, right? सिमिलरली c square is equal to, c के बाद आएगा ab, तो a square plus b square minus 2ab cos c, right? तो ये हो गया in terms of sides. Now let's look at cosine in terms of angles, ठीक है? First cos a, of course cosine रूल में cos रहेगा, sin रूल में sin रहेगा, right? तो cosine और rather cos a is equal to, basically ये तीनों फॉर्मूले बेसिकली आया बाय मॉडिफाइंग दिस थ्री, है ना? तो इसको हमने LHS की तरफ शिफ्ट किया, तो ये 2bc cos a बनेगा, फिर RHS में b square plus c square minus a square, तो b square plus c square minus a square अपॉन, देखो cos a के साथ जो है 2bc उसे डिवाइड करना है, ठीक है? सेकेंड cos b, वेरी सिंपल, देखो a के बाद bc minus a square upon 2bc, तो you should be able to write cosine rule for b as well. So what will it be? Cos b is equal to, b के बाद आएगा c, तो c square plus a square minus b square upon 2ca, and the third one cos c is equal to, तो c के बाद आएगा a b, तो a square plus b square minus c square upon 2ab, ठीक है? तो ये हो गया रूल्स. Now point is, when do we apply cosine rule? Now this is very important. When do we apply cosine rule? Say for example you want to find sides, से आपको साइड निकालना है, जैसे कि मान लो a निकालना है. Look at what information we require here. आपको b की जरूरत है, c की जरूरत है, and angle a की जरूरत है. So two sides and included angle, है ना? If you draw a triangle here, a b c, a b c, ये देखो b और c उनके बीच का एंगल, है ना? साइन रूल में 2 साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल होता है, कोसाइन रूल में 2 sides and included angle, right? So whenever 2 sides and included angle is given, we can always find the third side, and a side opposite to the given angle. So very important, 2 sides and included angle, यानी बीच का एंगल. Two sides and included angle are given.
we can always find the third side or side opposite to the included angle. Right? So two sides and included angle given, you can always find the third side. ठीक है? अच्छा. Now, say for example, you want to find angle A. You want to find angle A. किसकी जरूरत है? Pretty obvious. You see, we need all the three sides. या अगर उनका रेशियो भी होता ना तो भी हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं. So all angles are known to us. All angles या any two. Oh sorry. All sides. So say we know all sides, है ना? Say we know all sides. We can simply find all angles. या ratio of sides भी अगर हम जानते हैं, even if you know ratio of sides, right? Ratio of sides, we can still find angles. ठीक है? तो ये सब हम बात कर चुके ऑलरेडी अपना बोर्ड क्लास में, राइट? सो ये चीजें जो आपको रखना होगा और ये 3 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट? कि कब कौन सा केसेस में कोसाइन रूल अप्लाई होगा करके, ठीक है? सो एनीवे लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट? Question number 1. If sides of triangle are 3 plus root 3, 2 root 3 and root 6, find angles. Find all angles of triangle, right? Question number 2. If sides of triangle are A is equal to 2, B is equal to 1, C is equal to root 3. Find angles. Now this would be your homework question. Question number 3. If A is equal to 5, B is equal to 7, C is equal to 8, find angle B. तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा. Number 4. If A is equal to 6 centimeters, B is equal to 10 centimeters, and C is equal to 14 centimeters, then prove that triangle is obtuse with angle being 120 degree. ठीक है? Number 5. If sides of triangle, again this side, if sides are 8 centimeters, 10 centimeters, 12 centimeters, then prove that greatest angle is double the smallest. Next. चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, है ना? सो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिए ये फॉर्मूले, ठीक है? तो विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूले हियर. Let's try the first question. Let's try first question. Whereas we would try second, third, and fourth as well, right? Okay. So the sides of the triangle are so and so. So अपन एक काम करेंगे. We can assign letters to these values. Say let A be equal to 3 plus root 3, and B be equal to 2 root 3,
and CD equal to √6. ठीक है, he is asking us to find all angles. So angle A, angle B, angle C. Right? Okay. So कौन सा रूल लगेगा? Pretty obvious है. It has to be cosine rule, है ना? No prizes in guessing. All three sides are given. You are asked to find angles. Obviously cosine rule. अच्छा, आप लोग बताओ कि इनमें से कौन सा एंगल ग्रेटेस्ट होगा? सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा रहेगा? बिल्कुल इजीली गेस है ना? रिमेंबर, सबसे बिगेस्ट साइड जो होता है उसका ऑपोजिट एंगल हमेशा ग्रेटर होता है. Since small a is greatest here, isn't it? So angle A is going to be greatest, and there is a very good chance कि when you actually find cos A वो नेगेटिव हो जाए. इसलिए अगर मान लो अगर साइड A बहुत बड़ा है कंपेयर टू B एंड C, तो हो सकता है कि ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो और cos A की वैल्यू आ गया नेगेटिव, है ना? सो इसका मतलब कीप दिस इन माइंड कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, एनीवे लेट्स ट्राई. से वी वांट टू फाइंड cos A. cos A की फॉर्मूला है b² प्लस c² माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2bc. राइट? तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 into 3 12, ये 6 माइनस ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस 2ab 4 into √18, है ना? √18 2√3 सॉरी 3√2. अच्छा देखो 12 प्लस 6 18 माइनस सॉरी 9 प्लस 3 12, इसके साथ कैंसिल हो गया. 6 माइनस 6√3 6 माइनस 6√3. एक्चुअली अपन 6 कॉमन ले सकते हैं तो ये आएगा 1 माइनस √3 ओपन 12√2. तो 6 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. देखो मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2. हाँ, ये एंगल हम जानते हैं, isn't it? √3 minus 1/2 is something which is known to us. So keep this in mind. छोटा एंगल के लिए cos में ना प्लस होता है ना? सो रिकॉल करो, cos 15 डिग्री जो है वो होता है √3 plus 1/2√2, isn't it? So cos 75 होगा √3 minus 1/2√2, है ना? तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये cos 75 है. ठीक है, ये नेगेटिव साइन वैसे ही वैसे है. अब देखो ये नेगेटिव है माइनस cos 75 है, इसका मतलब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है. रिमेंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 75, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या रहेगा? 180 माइनस 75 व्हिच इज 105. या आप ये वाला फंडा भी अप्लाई कर सकते हो कि cos 180 minus theta is minus cos theta, है ना? You will also apply this फंडा, है ना? ये minus cos theta है तो हम इसको लिखेंगे cos 180 minus 75 minus so cos 105. Therefore angle A is 105, है ना? Be careful here. तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि ये cos कब होता है? 75 है, तो नेगेटिव टाइम्स है तो 180 माइनस 75 व्हिच इज 105. ठीक है, तो एंगल A आ गया. एंड यू सी दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना? क्योंकि A की वैल्यू आया ग्रेटर देन 90 या cos की वैल्यू आया नेगेटिव, है ना? cos नेगेटिव है सो देयरफॉर इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट? और cos A की वैल्यू सॉरी एंगल A इज 105, है ना? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन क्वेश्चन नंबर 4. Isn't it? You have been given all three sides. He is asking us to prove कि triangle is obtuse with one angle being 120. इसका मतलब हम कौन सा एंगल का cos निकालेंगे? cos A की cos B की cos C? cos C, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो ग्रेटेस्ट है कंपेयर टू ऑल थ्री, तो हम cos C निकालेंगे इसमें, है ना? सो वी विल नो दिस कि हम इसमें cos C निकालेंगे तो शायद से वो आएगा -1/2, है ना? तो cos 1/2 होता है 60 पे, -1/2 का मतलब 180 - 60 which is 120.
So you could try question number 4 pretty easily. Question number 3 तो डायरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्ट है, ए बी सी है ना, जैसा हम फर्स्ट करेंगे वैसे आपको सेकंड करना होगा, ठीक है। एनीवे ये एंगल ए है, तो एटलीस्ट यू नीड टू फाइंड वन मोर एंगल, राइट। तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, या आप साइन रूल भी लगा सकते हो, व्हाई नॉट। यू सी इफ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई कोसाइन रूल एनी मोर, आप अभी साइन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, आपके पास चॉइस है, क्योंकि आप देखो तीनों भी साइड्स है, एक एंगल है ना, तो आप बाकी दो एंगल्स फाइंड कर सकते हो बाय अप्लाइंग व्हाट इज इट साइन रूल, या आपका मर्जी अभी, है ना। लेट्स से यू वांट टू फाइंड b, लेट्स गो फॉर कोसाइन रूल, है ना, cos b, तो cos b इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2ac, सॉरी 2ca, ठीक है। तो ये 6 प्लस इसको हमने अभी एक्सपेंड किया, 9 प्लस 3 12 प्लस 6 रूट 3 माइनस 12 अपॉन 2 रूट 6 इंटू 3 प्लस 12 कटेगा, तो इनमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, इनमें से अगर हमने 6 कॉमन लिया तो ये आएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 6। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, तो ये 3 प्लस रूट 3 में से आपको रूट 3 कॉमन लेना होगा, तब जाके यहाँ आएगा रूट 3 प्लस 1, है ना। हमने ये 3 को लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 कटेगा, और ये 2 3 जा 6, है ना। अच्छा ये कितना होता है 3 अपॉन 3 रूट 2, 3 कटेगा, तो अल्टीमेटली बचेगा 1 बाय रूट 2, और cos 1 बाय रूट 2 कब होता है 45 में, देयरफॉर एंगल B इज 45, ठीक है। सो A 105 है, B 45 है, तो दोनों का सम कितना होगा 150, है ना। तो एंगल C कितना होना चाहिए, देयरफॉर एंगल C हैज टू बी 30 डिग्री, है ना। तो अच्छा अब देखो, नीड नॉट अप्लाई कोसाइन रूल फॉर C, cos C लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी दो एंगल्स है अपने पास, तो तीसरा एंगल के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किया, है ना। दोनों का सम आ रहा 150, 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, यहाँ आप साइन रूल भी अप्लाई कर सकते थे, है ना, यू कुड हैव अप्लाइड साइन रूल एज वेल, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड वी अप्लाइड साइन रूल हियर, है ना, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। अच्छा a की वैल्यू 3 प्लस रूट 3, a is 3 प्लस रूट 3, b is 2, तो a अपॉन साइन a, साइन 105, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। रिमेंबर एंगल a हमने डिटरमाइन कर लिया, इसके बाद आप साइन रूल अप्लाई कर सकते थे, है ना, ऑल्टरनेट मेथड। साइन a का मतलब साइन 105, साइन 105 का मतलब साइन 75 सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन 75 का मतलब रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, तो इसमें से रूट 3 कॉमन, 1 प्लस रूट 3, ये और ये कटेगा, है ना। अच्छा तो यहाँ है 2 रूट 2 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 3 अपॉन साइन b, या 2 रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6 अपॉन साइन c, तो ये 2 रूट 3 कटेगा, तो साइन b इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, सो b इज 45। रिमेंबर यहाँ 135 भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी a 105 है, तो ये रिजेक्टेड। अच्छा इसके हिसाब से रूट 3 रूट 2 रूट 6 कटेगा, साइन c 1 बाय 2, तो एंगल c 30 डिग्री, है ना। तो यू कुड हैव अप्लाइड साइन रूल एज वेल, लेकिन बी केयरफुल है ना, ये 3 प्लस रूट 3 में से हमने रूट 3 कॉमन निकाला, है ना, ये मॉडिफिकेशन करने को आना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज ट्राई सेकंड थर्ड फोर्थ एज होमवर्क। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ये देखिए
अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में हाउ डू यू प्रूव क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट इज ही आस्किंग अस टू प्रूव? ही इज आस्किंग अस टू प्रूव कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट या ट्वाइस द स्मॉलेस्ट. से साइड्स आर 8, 10, 12, है ना? अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि साइड्स आर इन AP. यूजुअली जब साइड्स आर इन AP एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो उनका जो रेशियो है ना वो 4:5:6 होता है ना? तो ये हम बाद में प्रूव करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? अच्छा, तो हम कुछ क्या बोलते हैं असाइन करेंगे इसको, है ना? जैसे कि ये A, ये B, ये C कंसीडर करते हैं. That AB is equal to 8 centimeters, BB is equal to 10 centimeters and CB is equal to 12 centimeters. अच्छा, पहली बात, इनमें से ग्रेटेस्ट एंगल कौन होगा, स्मॉलेस्ट एंगल कौन होगा? ग्रेटेस्ट विल बी C. तो ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑब्वियसली एंगल C and smallest angle A, isn't it? और प्रूव क्या करना है आपने को? What is he asking us to prove? कि greatest is double the smallest. माने indirectly is asking us to prove कि C is 2 times A. इसका मतलब हम क्या प्रूव करेंगे? He is asking us to prove कि C is 2 times A. So मान लो आपने कोसाइन रूल अप्लाई किया. से we applied cosine rule, से cos C अप्लाई किया. देखते हैं क्या आएगा. cos C का मतलब a square plus b square minus c square. a square plus b square minus c का square upon 2ab. 64 plus 100 minus 144 upon, इसको वैसे ही वैसे रखेंगे. कितना आएगा? 20 आएगा क्या? 20 upon 2 8 10. तो ये कटेगा, तो cos C आया 1/8. देखो ये स्टैंडर्ड नहीं है. अब क्या करें? मान लो ऐसा होता तो इट वुड हैव बीन बेस्ट, जैसे कि cos C का वैल्यू आया -1/2. इसका मतलब एंगल 120, सॉरी 120 तो दूसरा 60 नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा 0 हो जाना चाहिए, है ना? अच्छा, एनीवे बात, द पॉइंट हियर इज कि cos C का वैल्यू जो आया वो 1/8 है. cos very good. You see, proving this is as good as proving cos C is cos of 2 times A. ऐसे प्रूव करेंगे, है ना? तो पहले हम ये वाला प्रूव करेंगे, फिर cos और cos कैंसिल, देन वी कैन से C is 2 times A. अच्छा, अपने को cos C तो आ ही गया, LHS तो आ ही गया, है ना? अब RHS निकालना है, cos 2A निकालना है. कैसे? पहले cos A, फिर डबल एंगल का, सिंपल, वेरी गुड, नाइस. तब cos A निकालेंगे. cos A क्या होता है? b square c square minus a square. b square 100 plus c square 144 minus a square 64 upon 2 b c. अच्छा, ये कितना हुआ? यहाँ 80 बचेगा, है ना? क्या कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? सही था? अच्छा, ये बड़ा वैल्यू आएगा, है ना? ओके, तो यहाँ 80 है, 180 upon 2 10 12. 10 कटेगा, 2 9 का, 3 3 9 3 4 12 आया 3/4, है ना? हाँ, तो we need to find cos 2A. तो cos 2A का फॉर्मूला डबल एंगल 2 cos square A minus 1. तो 2 times इसका स्क्वायर minus 1. तो 2h, तो ये आ रहा 1/8. Therefore cos C is cos 2A. That implies C is equal to 2A. अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? Even though the values were not standard, है ना? Even though the values were not standard, we could still
फाइंड दी वी विल स्टिल प्रूव कि c is 2a, है ना। तो हमने cos अप्लाई किया दोनों तरफ से, राइट। सो दीज वर योर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, है ना। सो इसमें ना प्रॉब्लम कहा जा सकता है, प्रॉब्लम यहाँ जा सकता है कि ये देखो लुक एट दी नंबर्स 3 + √3 2 √3 √6 सारे इरेशनल साइड्स है। तो इन सच केसेस देखो ये आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए कि √3 कॉमन लेना है ना। वो सिंप्लीफिकेशन पार्ट में हमेशा प्रॉब्लम रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। सो एंड अच्छा ये देखो ये आगे जाके भी हम यूज करेंगे ये फंडा। cos किसी भी एंगल का अगर वैल्यू नेगेटिव आया उसका मतलब वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है ना। वो यहाँ आपको प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। लेट्स ट्राई नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इट इज गिवन कि एंगल ए इज 30 डिग्री और दो साइड्स का रेशियो है 2:√3, देन ही इज आस्किंग अस टू फाइंड एंगल बी। Its sides are a, b, √a² plus b² plus ab. Then find greatest angle. If a is 30, b is 8, c is 7, we need to find sin a और दूसरा tan a/2. cos a upon 7 is equal to if ax² plus bx plus c is equal to 0 and x² plus √2x plus 1 is equal to 0, have a common root. Of course, where a, b, c are sides of triangle ABC, है ना? This goes without saying. Then we need to find angle C. ठीक है, let's try these questions. Okay, let's look at question number 6. What is given to us? We have been given angle A. अच्छा, अब देखो ये दो साइड्स का रेशियो दे रहा था. Remember, whenever we have been given ratio of two sides, what is it that we always do? दो नंबर्स का रेशियो we always consider common multiple, है ना. तो yes, we introduce k, t, whatever. तो यहाँ b हो जाएगा 2k और c हो जाएगा √3k. अच्छा, ये देखो टू साइड्स और उनके बीच का एंगल दे रखा है. तो ऑब्वियसली वी अप्लाई कोसाइन रूल, है ना. तो जिससे हम a² फाइंड कर सकते हैं. रिमेंबर, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, वी कैन ऑलवेज फाइंड द थर्ड साइड. अगर आपको थर्ड साइड निकालना हो तो इमीडिएटली अप्लाई कोसाइन रूल. सो cos a, थर्ड साइड फाइंड करना है ना. तो c² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc इंटू cos a. cos a √3/2 होता है ना. तो ये 4k² bk² माइनस एक 2 कटेगा, √3 इंटू √3 3, तो ये बन गया 6k². Therefore c² is k², therefore c is k,
है ना, वी डू नॉट टेक प्लस माइनस हियर। अच्छा अपने पास थर्ड साइड भी, सॉरी कोऑर्डिनेट ये a है ना, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। अच्छा अब क्या करें, मैं हाउ डू वी फाइंड एंगल b, हाउ? तो अब देखो आपके पास तीनों भी साइड्स है, एक्चुअली आपके पास तीनों साइड्स नहीं है, आपके पास उनका रेशियो है, वी एक्चुअली हैव रेशियो ऑफ थ्री साइड्स, तो भी हम कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सिंस ही इज आस्क्ड अस टू फाइंड एंगल b, यू कैन ऑलवेज गो फॉर cos b, ये एक मेथड है। और रिमेंबर वंस यू हैव like 4 elements with us, you can always go for sine rule or cosine rule, दोनों में मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कौन सा बेटर रहेगा इसमें? साइन रूल बेटर रहेगा क्या? a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin a, तो k कटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 भी कटेगा, sin b इज इक्वल टू 1, तो एंगल b इज सिंपली 90 डिग्री। उसका मतलब आपका cos b जो आएगा इट शुड कम आउट 0, सो देयरफॉर एंगल b इज 90। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। टू साइड्स का रेशियो दे रखा है अनइंक्लूडेड एंगल, तो हमने थर्ड साइड फाइंड कर लिया। सिंस वी हैव रेशियो ऑफ ऑल थ्री साइड्स, वी कैन ऑलवेज गो फॉर कोसाइन रूल और वी कैन आल्सो गो फॉर साइन रूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, है ना। देखो अपने पास तीनों की तीनों साइड्स है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास तीनों की तीनों साइड्स है और अपने को फाइंड करना है sin a। sin a का मतलब साइन रूल में आता है, you think we should apply sine rule here? Remember when all three sides are known to us, we can find all angles। इसका मतलब पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? First we need to find, actually we are supposed to find cos a first। This should have been your first question।